Good afternoon, everyone. So today we are going to start with discrete probability distribution. Okay. So in discrete probability distribution, first of all, what is discrete distribution? You already know, you have learned in 11th standard. When we write the value of x, suppose 1, 2, 3, 4, and writing it into this form and having frequency beside is called the discrete probability distribution. Okay, whenever discrete probability distribution, when it is used, when the data is very small, instead of forming the classes, what we do is we form it in a we number it and then we find the frequency, and that is called a discrete distribution, right? So here also we are going to find discrete distribution, but here we are not going to find the frequency. Instead we are going to find the probability, because we are doing in this chapter probability, right? So in this chapter, what we will do is whatever discrete distribution we have made, we will find the probability of it. Okay, so we used to find the frequency, but in this chapter we will find the probability. माने we will denote it as px. px माने probability of what? x. x जो discrete distribution आपने बनाया उसकी probability क्या है? You already learned the probability chapter, right? Discrete probability distribution, whenever you find the probability, the value of the single probabilities should be, single probability should be more than 0 and less than 1. Means, can it be negative? Single probability, can it be negative? No, it cannot be negative. The values will be more than 0 and less than 1. And the total probability, it will always be 1. Okay, so this is how the discrete probability distribution works. Okay, now in discrete probability distribution there is a term called dichotomous experiment. Now what is this term, dichotomous experiment? Now whenever you conduct a random experiment, you have learned so many experiments, like when we want to toss a coin, throw a dice. These are the experiments that you can conduct. You want to spin a wheel, all these are the examples. Now whenever you conduct a random experiment and that random experiment has two outcomes, and those two outcomes are, one of them is success and the other one is failure. A random experiment which has two outcomes, and that is success and the other one is failure, and these two outcomes are mutually exclusive. Mutually exclusive माने क्या? एक दूसरे से एकदम अलग. When I say you are now within few months you are going to give your exams, right? A student which is failed in one subject is also a failure. And if a student is failing in all the subjects, then also it calls fail, right? Yeah. So it can be either fail or either pass. You cannot say मैं बस थोड़ा ही fail हुआ क्योंकि मैं एक ही subject में fail हुआ. Can you say that? No, because if you are fail in even one subject, it is called failure, and if you are passed in all subjects, then only it is your success. Means these two events are what? These two events are totally different from each other, right? And when these two events are totally different from each other, means these are mutually exclusive. इन दोनों के बीच में common कुछ नहीं है, दोनों एकदम अलग हैं. एक पास है और एक फेल है, दोनों कैसे हैं? एकदम अलग हैं. तो what is dichotomous experiment? It is a random experiment which has two outcomes. Which are the two outcomes? One is success and one is failure, and both these outcomes are mutually exclusive. They are totally different from each other, and that experiment we called it as dichotomous experiment. Okay, so this experiment is even this term is even asked for you for 1 mark or maybe for 2 mark. Okay, what is dichotomous experiment? So you have to know it is an experiment. It is a random experiment which is conducted, which is having two outcomes. It can be success, it can be failure, and these two outcomes are what? They are mutually exclusive from each other, and that is called dichotomous experiment. Now, the next term, Bernoulli trials. What is this Bernoulli trials? Whenever this experiment is conducted, result एक बार में नहीं आया, आपने बार बार उस रिजल्ट को ट्राई करते रहे. यू आर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स. अगर कोई इंसान एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो 12th छोड़ देगा. ही विल ट्राई इट अगेन, राइट? तो व्हेन दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड n number of times, we called it as
Bernoulli trials. When this experiment is repeated n number of times, we call it as Bernoulli trials. The experiment is repeated n number of times. So आपने क्या देखा? We have to consider two outcomes. The two outcomes is either success and either failure. हम लोग success को denote करेंगे P से and failure को denote करेंगे Q से. Okay, we will denote success as P and failure as Q. Now, whenever any question is given to you in exam or whenever you are solving it, one thing that you have to consider is question में आपको जो find करने के लिए बोला है वो आपको मिल जाए तो वो आपका success है. Are you getting it? If it is told to you to find defective items, तो defective items आपको मिल गई ना, अगर मिल गई तो वो आपका success है, अगर वो आपको नहीं मिला तो वो आपका failure है. एक बॉक्स है एप्पल का, 50 एप्पल्स है उसमें से, वो 50 एप्पल्स में से आपको रोटन मानी जो खराब हो चुके हैं वो एप्पल्स ढूंढना है. अगर आप उसमें से ढूंढ पाए तो वो आपका सक्सेस है, अगर वो आप नहीं ढूंढ पाए तो वो आपका फेलियर है. Means in every question, whichever question is given to you, two things you have to find, and that is your P and that is my Q. P is my success and Q is my failure. Means in every question you have to find P and Q. और one thing I would like to say, अगर P मिल गया तो Q मिल जाएगा, because P plus Q is equals to 1. P plus Q is equals to 1. अगर P मिल जाएगा तो Q मिल जाएगा, अगर Q मिल गया होगा तो P मिल जाएगा. How? If P is given as 2/3, तो अभी 3 में से 2 तो यूज हो गया, बचा कितना? 1. तो Q will be 1/3. Are you getting it? If P is 4/9, तो 9 में से 4 तो चला गया, बचा कितना? 9 में से 5 बचा, तो 5/9. Is it clear to everyone? So P and Q, one of them is given, then also you can find the next one, because P plus Q is equals to 1. तो आपको ढूंढना है किसी भी क्वेश्चन में सक्सेस और फेलियर. लेट्स सी इफ यू एग्जांपल्स वेयर वी हैव टू फाइंड व्हाट इज माय सक्सेस एंड व्हाट इज माय फेलियर. ठीक है, विल राइट व्हाट इज माय सक्सेस एंड व्हाट इज माय फेलियर. ठीक है. इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. एक कंपनी है जो आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, उनको जो प्रोड्यूस किया उनको सेल तो करना है ना, और वो सेल करने के लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर कुछ खर्चा किया. वो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा उन्होंने किया उसके बाद अगर सेल्स बढ़ गया तो वो हमारा सेल्स गोज अप, तो वो हमारा सक्सेस. इफ सेल्स डज नॉट गो अप या फिर सेल्स गोज डाउन तो वो हमारा फेलियर. एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ, वो खर्चा का पॉजिटिव रिजल्ट आया, सेल्स बढ़ा, देन इट इज अ सक्सेस. बट इफ द सेल्स डिड नॉट इंक्रीज देन इट इज अ फेलियर. आर यू गेटिंग इट? हाउ टू फाइंड द सक्सेस एंड हाउ टू फाइंड द फेलियर. वट एवर द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट स्टेप विल बी, यू हैव टू फाइंड द सक्सेस और फेलियर वट एवर इज गिवन. फाइंड एरर इन अ लेटर. अ लेटर इज टाइप, फाइनली टाइप लेटर इज गिवन टू यू, और आपको बोला है उस लेटर में से एरर ढूंढो. अगर उस लेटर में से आपको एरर मिल गया, यू गॉट द एरर, ठीक है, यू गॉट द एरर, देन इट इज सक्सेस. बट यू कुड नॉट फाइंड, if you could not find the mistake, then it is your failure. Find defective item. बॉक्स है, 50 स्क्रूज है उसमें 50 स्क्रूज के बॉक्स में से आपको डिफेक्टिव स्क्रूज को निकालना है. अगर आपको जो डिफेक्टिव है वो मिल गया, क्योंकि डिफेक्टिव ढूंढना था आपको, तो डिफेक्टिव जो ढूंढना है वही हमारा पी होगा, हमेशा याद रखना. Whatever we have to find, it is our P. P is our success, and success is what? Whatever is given to you to find, and that if you find that thing, that is your success. And in this question, you were supposed to find the defective items, and if you get the defective, you found it. Okay? तो ये हमारा success, but you could not find, then it is failure. Now you understanding what is my P, what is my Q, और P plus Q का आंसर क्या होता है? हमेशा 1. अगर एक मिल गया तो दूसरा आराम से मिल जाएगा. Is it clear? Yes.
So this is P, this is Q. We have a formula for discrete probability distribution, and for binomial probability distribution the formula that we write is n c x p raised to x q raised to n minus x. This is the formula probability find करने के लिए. So we can write it as px is equals to ncx. ये जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, n क्या है? जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, कितने ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से x क्या होगा जो आपको फाइंड करना है. p आपका सक्सेस है और q आपका फेलियर है. ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है, इक्वेशन कैसा बनता है? n c x p raised to x and q raised to n minus x. One thing that you have to remember is the value of x will always start from 0. n की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी. आर यू गेटिंग इट? अगर n हमारा 4 है तो मेरा जो x की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4 होगा. अगर मेरा जो n है वो 9 है तो x की वैल्यू 0, 1 कहाँ तक जाएगी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमेशा x की जो वैल्यू है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इज इट क्लियर? Before solving the sums, there are few properties that you have to learn for binomial probability distribution, और वो properties आपको sums में भी काम आएगी, and ये properties itself is asked for 3 marks or 2 marks maybe, sometime 2, sometime 3. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इटसेल्फ एज अ थियरी क्वेश्चन आता है, एंड ना भी आए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग द सम्स. ठीक है, बाइनोमियल, द वर्ड इटसेल्फ ना, बाइनोमियल, बाई मानी 2 आउटकम्स है, और वो 2 आउटकम्स कौन से हैं हमारे? P है और Q है. ठीक है, विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. मैंने ये बोला कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट टाइप का. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. 2 है ना, बाई मनी 2 कौन से आउटकम्स? एक है P, एक है Q, और हमारे जो 2 आउटकम्स मिल रहे हैं इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, देन कम्स पैरामीटर्स. मेनी टाइम इट इज गिवन द पैरामीटर्स. हमारे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कौन कौन है? तो n और p हमारे पैरामीटर्स हैं. कौन है पैरामीटर्स? n और p जो है वो हमारे पैरामीटर्स हैं. मीन जो है वो है n इंटू p, मानी n और p को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा हमारा मीन, और वेरिएंस जो है वो है n इंटू p इंटू q, मानी npq जो है वो हमारा वेरिएंस है. मीन जो है वो हमारा np है. अगर वेरिएंस पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो. अगर वेरिएंस npq है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा रूट ऑफ npq है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्क्रीट है. सेकंड हमने पढ़ा कि उसके पैरामीटर्स कौन है, n है और p है. बहुत बार सम्स में आप लोग को ऐसा दिया गया होगा, द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.5 एंड 6. अब वहां पे लिखा नहीं है कि वो 3.5 कौन है और 6 कौन है, लेकिन आपको अज्यूम कर देने का कि 3.5 माने n और जो 6 दिया है वो p है. यस, व्हाटएवर इट इज गिवन, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स ही है 2. कौन से पैरामीटर्स है? हमारे पैरामीटर है n और हमारा पैरामीटर है p. ठीक है, तो मीन है np, वेरिएंस है npq, स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट ऑफ npq. फिर अगर हम वेरिएंस को डिवाइड करें मीन से, व्हाट इज माय वेरिएंस?
My variance is NPQ and if I divide it by mean that is NP, तो ये N गया, P गया, हमारे पास बचा Q। मानी अगर Q कभी कभी आपको फाइंड करना है तो हम NPQ को NP से डिवाइड कर लेंगे तो भी आपको Q मिल जाएगा। NPQ हमारा वेरिएंस है और हाँ NP हमारा मीन है। वेरिएंस को मीन से डिवाइड करोगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। और Q मिल गया तो P कैसे मिलेगा? Yes, because P plus Q is equals to 1. Q मिल गया तो 1 में से P को माइनस कर देंगे, वो Q को माइनस कर देंगे तो P मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी बोल रही है कि जो हमारा सक्सेस है ना, वो अगर उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हाफ होगी ना, तो वो हमारा ग्रेटर देन हाफ होगी तो वो हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। अगर P की वैल्यू लेस देन हाफ होगी तो वो हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, और अगर P की वैल्यू इक्वल्स टू हाफ होगी तो वो होगा सिमेट्रिक। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको P की वैल्यू दी हो कि ना दी हो, पर P की वैल्यू हाफ है। इज इट क्लियर? P और Q मिसिंग होंगे, लेकिन बोला है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो P की वैल्यू तो हाफ ही है, अगर P हाफ है तो Q भी हाफ है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमें याद रखना है, सो दैट वी कैन सॉल्व द सम्स ऑल्सो। वी हैव दिस फ्यू प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू रिमेंबर सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द सम। कभी भी कोई सम मिले आपको, there are 4 things that you have to find in that question, and that we have to know N, we have to know P, we have to know Q, and we have to know the X। N माने क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिया है। P माने हमारा सक्सेस, वो नहीं हुआ तो वो हमारा फेलियर, वो हो जाएगा Q। और X माने क्या? जो आपको फाइंड करना है। माने ये 4 चीजें अगर आपको मिल गई तो यू कैन इजीली सॉल्व द फॉर्मूला एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। Okay, let's see one example. It is written like there are 3% defective items. 3% defective है, 3% अगर defective है, that means 97% is non-defective। 3% माने क्या? 3/100। 3/100 माने क्या? 0.03, एंड यहाँ पे क्या आएगा? 97/100 दैट इज 0.97। अभी 0.03 या तो P हो सकता है या तो Q हो सकता है। अगर वो P होगा तो दूसरा वाला जो होगा वो Q होगा। तो वॉट एवर वी हैव टू फाइंड दैट विल बी माई P। लेट्स सी व्हाट आई हैव टू फाइंड। सो first of all we'll see the question, if 3%, yeah 3%, so 0.03 is my P or Q, I don't know, whatever I have to find will be my P। Okay, there are 3% defective items produced in a factory, 4 items are selected। कितनी select हुई है? 4 items, माने N हमारा क्या है? 4, N is my 4। Find the probability that there is no defective। आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? डिफेक्टिव ढूंढना है, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3%, माने वो 0.03 हमारा सक्सेस है, माने P हमारा है 0.03, तो Q हमारा है 0.97, और बोला है कि नो डिफेक्टिव, माने एक भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए तो हमारा जो डिफेक्टिव है वो 0 होना चाहिए, मानी हमारा जो x है वो है 0। हमारा जो इक्वेशन है px का वो है NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, और हमें 0 डिफेक्टिव फाइंड करनी है, मानी हमारा जो n होगा वो होगा x होगा, वो हमारा 0 होगा, क्योंकि एक भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास हमारा जो n है वो 4 है, तो 4C0 0.03 रेज टू 0 एंड 0.97 रेज टू 4 माइनस 0 दैट इज 4।
ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे करना है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन 11th स्टैंडर्ड कि NCR को सॉल्व करने के लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल करते हैं, और डायरेक्टली भी अगर पता चलना चाहे तो आपको पता है कि 4C0 का आंसर हमेशा 1 आता है, तो यू ऑलरेडी नो दिस। Any number raised to 0 will also be 1 and 0.97 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 0.8853. My final answer is 0.8853. Is it clear? 4 things, whenever any question is given, 4 things you have to first of all find out. You have to find out n, you have to find out p, you have to find out q, and the next one is x. x माने जो आपको find करना है वो. Let's see one more example. Let's see one more example. Again वो 4 चीज लिख लेते हैं. हम लोगों को कौन सी चीज चाहिए? हमें चाहिए n, हमें चाहिए p, हमें चाहिए q और हमें चाहिए x. Now n, the probability that a person living in a city is a non-vegetarian is 0.2. माने 0.2 कुछ तो कुछ है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन. एक नॉन वेजिटेरियन का है 0.2. अगर 0.2 कुछ है तो बाकी का 1 माइनस 0.2 विल बी 0.8, right? Find out at the most 2 out of 6. 2 कितने में से? 6 में से. माने n हमारा 6 है, ठीक है. आर नॉन वेजिटेरियन, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? नॉन वेजिटेरियन की, और उसमें क्वेश्चन में दिया है कि 0.2 जो है ना वो नॉन वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी है. तो नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है तो p हमारा 0.2 है एंड q हमारा 0. और यहाँ पे x जो है वो क्या है? एट द मोस्ट 2. बच्चे यूजुअली गलती यहाँ पे कर जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता एट द मोस्ट माने क्या, एट लीस्ट माने क्या. एट द मोस्ट माने क्या? जब बोला हो एट द मोस्ट, एट द मोस्ट 2 माने 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 2 तक ही. समझ में आ रहा है? मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि x की वैल्यू हमेशा शुरू कहाँ से होती है? 0 से शुरू होती है. और अगर यहाँ पे एट द मोस्ट 2 लिखा है तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. एट द मोस्ट 2, नॉट मोर देन 2. नॉट मोर देन 2 भी लिख सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट मोर देन 2 लिखा होगा या फिर एट द मोस्ट लिखा होगा, एट लीस्ट लिखा होगा, एग्जैक्ट लिखा होगा. अगर एट लीस्ट लिखा हो, व्हाट डज इट मीन? एट लीस्ट 2 ऐसा बोला था तो कम से कम 2 से ज्यादा चल सकता है. हाँ, 2 से ज्यादा चलेगा पर 2 तो होना ही चाहिए. तो 2 से ज्यादा कहां तक चलेगा? वहां तक चलेगा जहां तक हमारा n है. तो हमारा n है 6, माने कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए. तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 से ज्यादा नहीं जा सकता, बट n हमारा 6 है, इसलिए. समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में एट द मोस्ट 2 था, मानी हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. ओके, चलो हमारा जो इक्वेशन है px का वो है ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. हमको प्रोबेबिलिटी 0 की भी फाइंड करनी है, 1 की भी फाइंड करनी है और 2 की भी फाइंड करनी है. तो x की जगह पे आप 0 भी डालोगे, 1 भी डालोगे, 2 भी डालेंगे, ठीक है. और हमारा जो n है वो 6 है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 6. 6c0, 0.2 रेज टू 0 एंड 0.8 रेज टू 6 माइनस 0 दैट इज 6. प्लस किसको करना है? 6c1, 0.2 रेज टू 1, 0.8 रेज टू 6 माइनस 1 दैट इज 5 प्लस 6c2, 0.2 रेज टू 2, 0.8 रेज टू 6 माइनस 2 दैट इज 4. और तीनों के आउटकम्स को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है. तीनों के आउटकम्स जो प्लस करेंगे वो होगा हमारा आंसर किसका? एट द मोस्ट 2 का. आर यू गेटिंग इट?
So this is the case. We have to remember always कि हमें P और Q ढूंढना है. तो जैसे क्वेश्चन मिले ये 4 चीजें ढूंढ लो. एक तो हमारा N, एक तो हमारा P, एक तो हमारा Q और X माने हमें जो फाइंड करना है वो. Is it clear to everyone? We'll solve next examples in the next class. Okay, thank you.